Hello everyone, today's topic is pleiotropy. Okay, previously we had talked about polygenes, right? Polygenes means many genes. You can see there are many genes which are responsible for a single phenotype, like for skin color in humans. Okay, for skin color in humans, we have seen 3 genes are responsible, right? 3 जीन है और एक phenotype है. अब प्लियोट्रॉपी में आप देखेंगे a single gene is there which is having multiple effect. Okay, so we can say that suppose this is a chromosome and here there is a gene. Okay, there is a gene and this gene is responsible for multiple traits. It is going to affect a trait 1 and different other traits as well, trait 2 and trait 3. Okay, so a single gene is responsible for many traits. This is what? This is the pleiotropy. Okay. Spelling is wrong over here. I have to add O also. Okay, so pleiotropy is clear. A single gene is going to affect many traits. Okay, एक जीन के बहुत सारे effect होते हैं. We can say a gene is a multitasking. Right? If we talk about a human body, एक जीन जो है बहुत सारे organs को destroy कर सकती है. It is responsible for affecting many organs. Okay, that we will see in some of the examples. Then what are pleiotropic genes? A gene which is having multiple phenotypic effect. Okay, a gene having multiple phenotypic effect is what? Is called pleiotropic gene. ठीक है. अब ये जो जीन है इसको ये दो तरह से अफेक्ट कर सकती है. एक तो इसका मेजर इफेक्ट होगा. ठीक है. सपोज एक ट्रेट को ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है. इट इज अफेक्टिंग अ लॉट, सो दैट इज द मेजर इफेक्ट. और अदर ट्रेट्स को इट इज अफेक्टिंग नॉट दैट मच, सो दैट वी कॉल इट अ सेकेंडरी इफेक्ट. ठीक है. और वी कैन से इट इज लेस एविडेंट एक्सप्रेशन इट इज शोइंग टू द next trait, so that is the secondary effect. Okay, so we cannot say that it is affecting equally to all the traits. किसी एक trait को ज्यादा affect कर सकती है और दूसरे को थोड़ा कम कर सकती है. Right? So let's move on to the examples now. So first example is the gene for flower color in sweet pea. ठीक है. जो gene sweet pea में flower color के लिए responsible है, the same gene is responsible for seed color. Okay, then the same gene is responsible for red spots in the axis of leaf. Okay, एक ही जीन है और बहुत सारे काम है. Multiple effect, right? Then if we will talk about wing size in Drosophila, there is a gene which is responsible for wing size in Drosophila. The same gene is also responsible for the fertility. It is also responsible for eye color. Okay, it is also responsible for longevity. Okay, etc. So you can see a single gene is responsible for many effects. Okay, or we can say many traits. So this type of gene is a pleiotropic gene, isn't it? Is it clear? Now in detail we will see in human the disease is sickle cell anemia. Okay, it is an autosomal mutation. So in detail I had already talked about you in my videos. Okay, playlist is there, mutation playlist, in which you can see sickle cell anemia and phenylketonuria albinase. Okay, तो ये सब क्या है? These are also an example of pleiotropic gene. तो चलिए sickle cell anemia को फिर से देख लेते हैं. Okay, this is our red blood cell. Let me take another color. Okay, this is a red blood cell and you can see in this hemoglobin is there. Okay, this is the structure of hemoglobin. ये hemoglobin का structure है in which you can see 2 beta chains are there. 2 beta chains होती हैं and 2 alpha chains are there. ठीक है. अब sickle cell anemia में beta chain affect हो जाती है. Okay, beta chain is affected.
जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ओके, और वो हीमोग्लोबिन कहा जाता है सिकल सेल हीमोग्लोबिन, जिसे हम लिखते हैं HbS। ठीक है, ये जो नॉर्मल होता है उसको लिखते हैं HbA। दिस इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड दिस इज सिकल सेल हीमोग्लोबिन। ओके, क्या होगा इसमें, जो बीटा ग्लोबुलिन चेन है इसको अफेक्ट करेगी एक सिंगल जीन। ठीक है, अब एक तो ये हीमोग्लोबिन को अफेक्ट कर रही है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज कर रही है, और दूसरा काम क्या करती है, इट इज गोइंग टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द आरबीसी। जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है बाइकॉन्केव, अब वो कैसा हो जाएगा, क्रीसेंट शेप का। ठीक है, आपने देखा है चांद जब निकलते हैं क्रीसेंट शेप का निकलता है, उस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है रेड ब्लड सेल्स का। तो दो काम हो रहे हैं ना एक साथ, एक तो ये बीटा चेन को भी इफेक्ट कर रहा है और सिमिलरली एट द सेम टाइम इट इज अफेक्टिंग द शेप ऑफ द आरबीसी। ओके, सो टू फंक्शन अ सिंगल जीन इज डूइंग। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी, इजंट इट। ठीक है, देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये ग्लोबुलर है। ठीक है, ये आरबीसी है आपकी रेड ब्लड सेल्स बाइकॉन्केव, राइट, इनका बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हीमोग्लोबिन है दिस इज सिकल सेल हीमोग्लोबिन HbS, दिस इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन HbA। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो शेप है वो कैसी हो गई है, इट इज चेंज। ओके, क्लम्प्ड हो गई है। क्यों, क्योंकि इसमें जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसमें अफेक्ट हो गया है, ड्यू टू दिस इट इज बिकम मोर फाइब्रस। ओके, ये फाइब्रस हो जाती है जिसकी वजह से जो शेप है रेड ब्लड सेल की वो कैसी हो जाएगी, इट विल बिकम सिकल। ठीक है, हीमोग्लोबिन के चेंज की वजह से रेड ब्लड सेल की जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगी, वो सिकल शेप जैसे हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या होगी, जो हमारी नैरो कैपिलरीज होती हैं, ये जो नैरो कैपिलरीज हैं, यू कैन सी ये जो क्रीसेंट शेप के जो रेड ब्लड सेल्स हैं दे आर नॉट एबल टू पास फ्रॉम द नैरो कैपिलरीज। ये यहां से निकल नहीं पाएंगे क्योंकि जो बाइकॉन्केव होते हैं ना वो अपनी शेप थोड़ी सी चेंज करके थोड़ा छोटा होकर निकल जाते हैं, दे कैन इजीली मूव आउट थ्रू द कैपिलरीज। अब जो क्रीसेंट शेप के होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लॉक कर देंगे, धीरे धीरे इकट्ठे हो जाएंगे, निकल पा नहीं रहे हैं, दे गेट means they get stick to this here at one point and then they block the capillaries। अब जब ये कैपिलरी ब्लॉक हो जाएंगी तो सर्कुलेशन कैसा हो जाएगा, पुअर सर्कुलेशन हो जाएगा एंड देन द पर्सन इज नॉट एबल टू गेट द ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ये जो सेल्स होती हैं ये डिस्ट्रॉय वेरी वेरी फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। दैट्स व्हाई द पर्सन आल्सो सफर्स फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड एनीमिया। ठीक है, जिसकी वजह से एनीमिया भी हो जाता है। Isn't it? Is it clear? So this is what pleiotropy is. A single gene is affecting two things over here. It is affecting the hemoglobin type. Hemoglobin का structure affect किया. That is also changing the shape of the red blood cells. Okay. Hope this is clear to you. Okay. Now let's see a cross. एक cross करके देखते हैं जिसमें we will see that the father is a carrier. ओके, ये फादर है और ये मदर है। ओके, एंड मदर। सो बोथ आर द कैरियर्स, मींस बोथ आर इन हेटेरोजाइगस स्टेट। ओके, बोथ द एलील्स आर डिफरेंट। ये कैरियर है, कैरियर मतलब हो गए इनमें भाई जो सेल्स बन रहे हैं दोनों तरह के बन रहे हैं, सिकल सेल शेप के भी बनेंगे और नॉर्मल भी। ओके, तो अब इनके गैमेट्स बना लेते हैं। गैमेट्स क्या हो गए, HbA और HbS, ये इसके क्या मीन्स हो गए और इसके भी सेम HbA। HbA मीन्स नॉर्मल हीमोग्लोबिन और HbS इज सिकल सेल हीमोग्लोबिन। ओके, नाउ वी विल डू द क्रॉसिंग। देखिए अब इसके जो सन्स होंगे या जो भी डॉटर होंगे, ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उनमें क्या होगा, व्हाट आर द चांसेस ऑफ अफेक्टिंग अबाउट दिस डिजीज। दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्मल। ओके, ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। एंड देन इसका क्रॉस अगर इससे करेंगे तो ये क्या हो गया, इट इज अ कैरियर, ये कैरियर हो गया। दिस इज ऑल्सो अ कैरियर। ओके, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, इट इज अफेक्टेड, सो दिस पर्सन डाई। ठीक है, तो F1 जनरेशन में आप देख सकते हैं
जो रेशियो हमें पहले क्या मिलता था, 3:1 मिलता था। ओके, पी प्लांट का जब क्रॉस किया था F1 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, 3:1। अब यहाँ पे जो फिनोटाइपिक रेशियो है, यू कैन सी इट इज 2:1, बिकॉज दिस पर्सन इज नो मोर नाउ, क्योंकि ये अफेक्टेड है सिकल सेल एनीमिया डिजीज से। These two are the carriers and this is one child is normal. Okay, so this is all about pleiotropy. Hope this topic is clear to you. If you seriously like my videos, hit the bell icon and also subscribe to my channel. Thanks for watching.